वीडियोस देख के आए हो सब लोग? Everyone has seen the video for today or not? If you have seen, it would be very easy for me and for you also to understand. That's it. और कुछ नहीं. There are some parts जिसमें मैम ने थोड़ा सा ज्यादा भी किया हुआ है. मैं उतना पार्ट मतलब लेता नहीं हूँ. Generally, it's not there in a textbook also, so don't worry about it. Right? हम लोग को उतना ज्यादा नहीं करना है. But yeah, from examination point of view, हम लोग cover up कर लेंगे. Okay? चलो. Let us begin with the reactions of carboxylic acid. At least मैंने 2 reactions आप लोगों को last class में समझा दिए थे, if I am not wrong. The first reaction was with active metals, if I remember. है ना? कौन सा active metal लिया था? I guess sodium लिया था हम लोगों ने, है ना? Remember? तो sodium में क्या होता है? What happens? RCOOH plus sodium metal we have. So what will happen in sodium metal over here? क्या हो जाएगा? The sodium will replace H. So what is the product you're going to get? RCOO minus Na plus half molecule of hydrogen is going to get released. Correct or not? ये पहला वाला reaction था आप लोगों का, which was proving the acidity of carboxylic acid. है ना? Remember all of you? All of you are with me? Clear? Correct है? Sure. Sure. Then the second reaction. ये भी हम लोग ने कर लिया था. If you remember, reaction with NaHCO3. What happens with NaHCO3? क्या होता है? We have this carboxylic acid with NaHCO3. Okay? And what will happen over here? The sodium and the hydrogen over here get replaced. वो interchange हो जाता है. तो interchange होने के बाद क्या हो जाता है? RCOO minus Na plus what are you going to get? You're going to get a carbon dioxide gas which is released plus water. This carbon dioxide gas turns lime water milky. Remember? याद है? और हम लोग ने इसका क्या किया था? What did we do? हम लोग यहाँ पे इसको distinguishing test की तरह इसको use करते हैं. If you remember the question was distinguish between phenol and benzoic acid. Remember? है ना? इन दोनों के distinguishing test में हम लोग ने इसका usage किया था. Okay? Let us go for the third reaction, जो बहुत सालों से आप पढ़ते आ रहे हो. Esterification reaction. Remember the esterification reaction, right? कोई बता सकता है एस्टर का स्मेल कैसा होता है? What is the smell of ester? It has got a characteristic odor, right? Which is the physical property also and a sign of its क्या बोलते हैं? The recognition. Correct. बेटा यशवी आप फटाफट में कुछ और लिख गए देखो. It's okay. But you are absolutely correct. आप जो लिखना चाहते थे वो मेरे को पता चल गया. Correct है. Yes. So हमारा डबल बॉन्ड बताएगा कि क्या होता है हमारा एस्टर का स्मेल. डबल बॉन्ड क्या होता है एस्टर का स्मेल? हिमाय, आर यू देयर? यस सर. हाँ बताओ एस्टर का स्मेल कैसा होता है बेटा? स्मेल याद नहीं. लो बोलो. याद नहीं है. 10th में जा प्रकाश. स्वीट्स. अरे स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस. Yeah, fruity smelling, sweet smelling substance. Correct. Very good. So आप लोगों को बचपन में क्या पढ़ाया जाता है कि भाई एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और एक अल्कोहल होता है. उसमें हम H2SO4 डाल देते हैं. पर 10th वाला टीचर ना what happens is that वो हम लोगों को करेक्ट पोजीशन नहीं बताते हैं. ठीक है? That we cannot get the correct position over in 10th standard that where the water has been released out. So अब मैं आपको exactly बताऊंगा कि यहाँ से अल्कोहल से हाइड्रोजन जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH जाता है. Okay? So what happens is that water molecule has been released outside and over here RCOOR dash ऐसा बनता
है अपना एस्टर. Clear all of you? It's a sweet smelling, fruity smelling substance. Okay. धैर्य में जरूरत नहीं होती है. अरे क्या होगा, कोई बात नहीं, चलो, it's okay. Let's go for the next reaction which is important, और ये भी आप लोग ने किया हुआ है in your previous chapters, which is reactions with PCl5, PCl3 and SOCl2. If you remember, दोनों चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर और हेलो अल्केन हेलोरी दोनों में ये रिएक्शंस आते हैं, है ना, और आपको सिर्फ क्लोरीन रिप्लेस करना होता है. तो यहाँ पे भी क्या होता है, क्लोरीन रिप्लेस होता है. सो इफ दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, RCOOH, इसके अंदर अगर मैंने PCl5 डाल दिया तो व्हाट विल हैपन, क्लोरीन विल बी रिप्लेस्ड ओवर हियर. सो आपको क्या मिलेगा ओवर हियर, RCOCl plus for PCl5, if you remember, the byproduct is POCl3 plus H2O, है ना. For RCOOH plus PCl3 अगर हम लोग करें तो फिर से OH किससे रिप्लेस हो जाएगा, Cl. So what will happen over here, RCOCl plus H3PO3. okay, then यहाँ पे RCOOH plus SOCl2, तो फिर से ये OH हमारा क्या हो जाएगा, it will be replaced with what, it will be replaced with Cl. So you'll get RCOCl plus SO2 gas plus HCl, है ना, correct? Clear all of you? Okay, now over here the next one, the fifth one, that is quite important, which is reaction with ammonia. ये वाला रिएक्शन हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर के लिए बहुत काम में लगने वाला है गाइस. ओके, देयर आर प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस फ्रॉम हियर जो हम लोगों को क्या होने वाला है, काम लगने वाला है. सो प्लीज कीप दिस इन माइंड. ओवर हियर रिएक्शन विद अमोनिया में क्या होगा, RCOOH जो है, अगर मैंने उसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया, सो दिस NH3 विल बी एडेड ओवर हियर, वो एडक्ट की तरह ऐड हो जाएगा. मतलब आपको क्या मिलेगा पता है, RCOONH4 ऐसा कुछ मिलेगा. नाउ ओवर हियर जब इसको आप हीट करोगे ना, व्हेन यू विल हीट दिस सब्सटेंस लूजेस वाटर मॉलिक्यूल. वाटर मॉलिक्यूल कैसे लूज होगा, ऑफ कोर्स यहाँ से 2 हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन, तो अगर वो निकाल देता है हम लोग तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, व्हाट विल हैपन, RCONH2, you will get an amide. क्या मिलेगा आपको, amide. Clear all of you? समझ में आ रहा है? Sure, everyone has understood? पक्का? Till here everyone is with me? Sure है? Please by the show of hands tell me if you have understood or not. पक्का ना? Okay, great. चलो. सो कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोगों को क्या मिल गया भाई, हम लोगों को अमाइड मिल गया. ठीक है, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन. अब एक ये नेक्स्ट रिएक्शन जो मैं करने वाला हूं, दैट इज गोइंग टू इंक्लूड रिडक्शन, राइट? इट इज गोइंग टू इंक्लूड रिडक्शन. नाउ इट इज very important for you all to know that reduction is always biconcave reaction. Biconcave का मतलब अगर एक का रिडक्शन होके दूसरा प्रोडक्ट मिलता है तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होके पहला प्रोडक्ट मिलेगा. सो इसका मतलब क्या होता है, सी ओवर हियर, कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम रिडक्शन करेंगे तो हमेशा अल्कोहल मिलेगा, और अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा. करेक्ट? तो ये हम लोगों को याद रखना है. ठीक है, बट दिस ओनली फॉल्स फॉर वेरी मतलब जो हमारे प्रोमिनेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन एजेंट है ना, उनके लिए ही ऐसा होता है. ठीक है, आई विल टेल यू, गिव एन एग्जांपल, आई विल गिव यू एन एग्जांपल एंड लेट यू नो. ठीक है, सी ओवर हियर.
So let me give you one prominent example of carboxylic acid का reduction. So suppose if you have RCOOH, okay, और इसके अंदर आपने LiAlH4 लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला, तो लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड के कारण 4 नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज होंगे, एंड ड्यू टू दैट व्हाट विल हैपन, यहाँ पे आपको RCH2OH प्लस यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वाटर. सो कार्बोक्सिलिक एसिड से मुझे रिडक्शन करके क्या मिला यहाँ पे, अल्कोहल. करेक्ट. और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे, KMnO4 डाल दोगे उसमें, तो फिर से मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा. ठीक है, that H2 will be again replaced by O. Okay. One another important notice what we have to bring over here is that carboxylic acids are not reduced by one agent. कोई मुझे बता सकता है एक रिएजेंट जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस नहीं होता है? ये हम लोग ने लास्ट चैप्टर्स में भी किया हुआ है, प्रायर चैप्टर्स में भी किया हुआ है. anyone who can tell me? कोई बता सकता है मुझे? प्लीज टर्न ऑन योर कैमराज ना बेटा, आपके कैमराज ऑन नहीं होते, मुझे बहुत पीछे जाना पड़ता है. प्लीज टर्न ऑन योर कैमराज. जैनिश, काव्या, श्रेय, निधि, पीएम, प्लीज टर्न ऑन योर कैमराज. Yes. Okay, so I see Kavya raising her hand. I'll ask her only. Yes, Kavya, बताओ कौन सा reagent होता है बेटा? Sir, is it NaBH4? Superb, very good. It is an exception that NaBH4 जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को रिड्यूस नहीं कर पाता है. क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया आप लोगों को? वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को रिड्यूस नहीं कर पाता है. ठीक है, ओके ऑल ऑफ यू. अब एक दूसरा स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, and that specific reducing agent is, can anyone guess this? If you have seen this, have you seen this reagent all of you? Red phosphorus and HI, right? ये एक special reagent है. It's a very special reagent. I don't know if it is covered up in videos or not. मुझे याद नहीं है, मैंने देखा नहीं है. But see over here, रेड फॉस्फोरस इन HI, जब हम लोग RCOOH में हम लोग HI और रेड फॉस्फोरस ऐड करते हैं विद प्रेजेंस ऑफ वाटर, यहाँ पे एक्सेप्शनली, दिस इज एन एक्सेप्शन ऑल ऑफ यू, एक्सेप्शनली कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू अल्केन्स. किस में कन्वर्ट हो जाता है? इनटू अल्केन्स. Plus you will get iodine and you will get water molecules. Okay, but this is an exception case, so please remember this, that whenever carboxylic acid is treated with HI and red phosphorus, it gives you alkanes. ठीक है? Clear all of you? Till here everyone is with me? Sure है? Yes, Roshni, you were correct. Harshwar also you can correct. Mahir, आपको पता चल गया बेटा what I was trying to say? क्लियर है सब लोगों को? श्योर. ओके, चलो, लेट अस मूव ऑन अहेड. लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन. द नेक्स्ट रिएक्शन आई एम डेफिनेटली श्योर मैम ने वीडियो में नहीं लिया हुआ है, बट फिर भी कल का जो JEE का पेपर हुआ उसमें ये रिएक्शन आया था, एंड वो अपने NCERT एग्जाम्पलर बुक में है. इट इज नॉट इन टेक्स्ट बुक बट इन एग्जाम्पलर वन. सो प्लीज लेट मी गिव यू दिस वन बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट वन. ठीक है, पूछा था तो इसलिए आज क्लास भी है तो लगे हाथों करा देता हूँ. ठीक है, द रिएक्शन इज dehydration reaction. In this dehydration reaction, we react with, the reaction is with P2O5. The dimer of P2O5 is P4O10, तो हम लोग P4O10 भी लेते हैं. ठीक है, अब इसमें होता क्या है? See over here all of you. I hope dehydration का मतलब सबको पता है. Dehydration का मतलब होता है loss of water molecule. क्या होता है? Loss of water molecule.
तो जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ पे, अगर मैंने इसको हीट किया विथ P4O10 डाइमर ऑफ P2O5, तो यहाँ से पानी का मॉलिक्यूल लूज होगा, पानी का मॉलिक्यूल लूज हो जाएगा। जैसे ही पानी का मॉलिक्यूल लूज होगा, व्हाट विल हैपन ओवर हियर? RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, COR, मतलब C डबल बॉन्ड OR, you will get an anhydride over here. क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? anhydride plus you will get the water molecule outside. ठीक है? Clear all of you? Is this reaction clear all of you? Sure है? सिर्फ दो कार्बोक्सिलिक एसिड के हीट करने से पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो वो पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है तो हमें कौन सा सब्सटेंस देके जाता है? एनहाइड्राइड देके जाता है वो। ठीक है? क्लियर ऑल ऑफ यू? श्योर है? प्लीज विद द शो ऑफ हैंड्स टेल मी इफ यू आर विथ मी और नॉट। पक्का सबको समझ में आया हुआ है? क्लियर है? जैनिश प्लीज कीप योर कैमराज ऑन। करेक्ट। समृद्धि समझ में आया बेटा? ओके ओके। संतोष पता चला है? तू खुद ऐसा अंधेरे में बैठा हुआ है क्या? तेरे को दिख रहा है? लाइट कर भाई। चलो, then let us go for the next one. The next reaction is very simple. Again, you have studied this in your 11th standard. Decarboxylation reaction. Heard about this? Decarboxylation reaction. याद है ना आप लोगों को? Decarboxylation reaction मतलब reaction with किसके साथ? सोडा लाइम के साथ। The reaction is with soda lime. So what is soda lime? कौन बताएगा मुझे? वीडियो देखा होगा तो रिवाइज हो ही गया होगा, ऑब्वियस है। यस रोशनी, यू आर द फर्स्ट वन टू रेज द हैंड। चलो बताओ क्या होता है बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड CaO। मिक्सचर किसके साथ कैल्शियम ऑक्साइड का? NaOH plus CaO। वेरी गुड। So soda lime is mixture of NaOH plus CaO. Perfect. So what do we take? We take sodium salt of carboxylic acid, फिर उसके साथ हम लोग क्या रिएक्ट करवाते हैं? सोडा लाइम, मतलब NaOH plus CaO। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? what we will do, we will have Na2CO3 removed। हमको Na2CO3 रिमूव हो जाएगा। सो ये है हमारा Na2CO3 that will be removed। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? RH plus Na2CO3। So you get an alkane over here. Because of decarboxylation, आपको क्या मिलता है? Alkane मिलता है। Clear? Getting it all of you? Okay. In the chat box also everyone was correct. So good. Okay. Till here everything is clear. बहुत simple reaction था ये भी, है ना? Okay. चल, let us go for the next reaction. एक और reaction की तरफ जाते हैं, which is also known as Hunts-Dicker reaction. Remember this reaction? Hunts-Dicker reaction किसी को याद है? ये हम लोग ने previous chapters में ही किया हुआ है। But if you still don't remember, it's okay. Let me give you a hint over here. देखो, Hunts-Dicker reaction में क्या होता है? Over here we take silver salt of carboxylic acid. क्या लेते हैं हम लोग? Silver salt of carboxylic acid. This silver salt of carboxylic acid को हम लोग किसी के साथ ट्रीट करते हैं। And what is that reagent? That is nothing but your halogen. किसके साथ? Suppose मैं Br2 के साथ ट्रीट करता हूँ। अब Br2 होता है ना, वो लिक्विड होता है, ठीक है? उस लिक्विड को डिसॉल्व करने के लिए इसके साथ, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इस लिक्विड को डिसॉल्व करने के लिए CCl4 डलता है। इट्स अ सॉल्वेंट जिसमें ये दोनों डिसॉल्व हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? व्हाट विल हैपन ओवर हियर? एक Ag और Br बाहर निकल के AgBr बना देंगे और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? व्हाट यू आर गोना गेट? यू आर गोना गेट RBr। व्हाट यू आर गोना गेट? ब्रोमो अल्केन।
और आपका ये जो CO2 है वो गैसियस स्टेट में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज अ मेथड टू प्रोड्यूस ब्रोमो अल्केन, मतलब हेलो अल्केन बनाने के लिए ये एक मेथड है, ठीक है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? इज द हंट्स-डेकर रिएक्शन क्लियर? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में सिर्फ आपको हेलोजन डालना होता है, तो वो हेलोजन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है, सिल्वर का सॉल्ट बन जाता है, और आपके अल्काइल ग्रुप के साथ वो हेलोजन डल जाता है, मतलब इट्स अ ब्रोमो हेलो क्लोरो या जो भी हेलो अल्केन बनाना हो वो बन जाता है। क्लियर ऑल ऑफ यू? टिल हियर एवरीवन इज क्लियर? श्योर है? पक्का ना? क्लियर? ओके। श्रेयल, रचित, दिया, प्लीज कीप योर कैमराज ऑन बेटा। केवल, तनय, यशवी, धैर्य, प्लीज कीप योर कैमरा ऑन। पता नहीं फिर तो क्या करता रहेगा, क्या सूंघेगा क्या नहीं सूंघेगा क्या पता। प्रतीक, प्लीज कीप योर कैमरा ऑन इफ यू कैन। ओके, ग्रेट। ऑल ऑफ यू विथ मी? ठीक है, चलो let us move on to the next one. The next reaction what we have, the next reaction, इसको भी एक हटके एक मतलब I am going outside the textbook, but this was seen in गुजरात CET, जो 24 अगस्त को गुजरात CET हुई थी उसमें ये क्वेश्चन था, ठीक है। सो आई थॉट व्हाई नॉट हम लोग इसमें इंक्लूड कर देते हैं। जस्ट अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज आउटसाइड टेक्स्ट बुक बट फ्रॉम एग्जाम्पलर, मैं एग्जाम्पलर का बता रहा हूँ, ठीक है। टेक्स्ट बुक में ये पार्ट नहीं है, टेक्स्ट बुक की एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस में ये रिएक्शन नहीं है, ठीक है। ओके, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ जिसको कंपटीशन में काम लगेगा। सो द रिएक्शन इज पायरोलिसिस। हैव यू हर्ड अबाउट पायरोलिसिस ऑल ऑफ यू? एक्समैन देखते हैं कोई, मतलब एक्समैन फैन होगा तो उसको पायरो पता होगा। एनीवन एक्समैन फैन हुए हो? यस, सो यस, करेक्ट रीमन। तो ओवर हियर पायरो मतलब हीट होता है, पायरो का मतलब क्या होता है? हीट, और लिसिस का मतलब होता है टू ब्रेक। ओके, मतलब यस, परफेक्टली करेक्ट निधि, परफेक्ट। सो हीट से ब्रेक करना। मुझे क्यों ऐसा लगता है सिर्फ निधि ही 11th स्टैंडर्ड पढ़ के आई है, बाकी तो सब ऐसे ही आ गए हैं, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, चल, इट्स ओके। चल, पायरोलिसिस क्या होता है? जस्ट अ सेकेंड, आई अगेन राइट इट डाउन ओवर हियर। पायरोलिसिस हम लोग करते हैं रिएक्शन। अब किसका होता है पायरोलिसिस पता है? कैल्शियम सॉल्ट्स का। ओके, so for example if you have CH3COO calcium COOCH3, अगर मैंने इसको हीट कर दिया so कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलने वाला है, CaCO3 will be thrown outside, CaCO3 something like this। जैसे ही CaCO3 बाहर निकल जाएगा what will happen? CH3COCH3 CH3COCH3 प्लस CaCO3, मतलब आपको यहाँ पे क्या मिल गया? एसीटोन। ओके, क्लियर? तो हीट करने से कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलता है, ऐसा। एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर एग्जाम समझ में नहीं आया तो जस्ट अ सेकेंड। HCOOCA HCOOC, ऐसा। अगर मैंने इसको हीट कर दिया, पायरोलिसिस कर दिया, तो क्या हो जाएगा? CaCO3 बाहर निकल जाएगा, you will get HCHO, you will get an aldehyde। what are you going to get? Formaldehyde, ठीक है, plus CaCO3 will be given out। okay, so this were the two reactions which will be what? which will be given extra। ये extra reaction है, again I am repeating, it is not part of your NCERT textbook, it is just a part of your exemplar thing asked in Gujarat CET and your this one JEE mains का एग्जाम जो अभी हुआ वही recently, उस इसके लिए मैंने करा दिया, ठीक है। ओके, लेट अस मूव ऑन टू द सिलेबस, वरना आप लोग बोलोगे सर कहाँ पढ़ गए, हमको JEE का क्लास नहीं करना है सर, आई अंडरस्टैंड। सो लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट रिएक्शन व्हाट वी हैव ऑलरेडी लर्न, जो आपने वीडियो में भी देख के आए होंगे, वो है
HVZ reaction. If you remember the name of HVZ reaction, it is Hell-Volhard-Zelensky reduction. Okay, what is this reaction? Hell-Volhard-Zelensky reduction. ये जो HVZ reaction होता है, if you all remember, हाँ Riman, I can get it, I totally relate it. तो ये जो HVZ reduction होता है वो सिर्फ और सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स में होता है. किस में होता है? अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स में होता है. ओके, तो कौन मुझे इसका मतलब समझाएगा? अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग का मतलब क्या होता है? हु विल टेल मी? कौन बता सकेगा? क्लास को कौन समझाएगा? प्रतीक, धैर्य, प्रणय, आदित्य, प्लीज कीप योर कैमरास ऑन. Now seriously, it has been so much, distraught for me also. Rather than taking the class, I'll have to tell all these things to you all. Yes, Mehak, आप हो इधर अपने साथ? Mehak, are you there? Yes, sir. Okay, so yes, Mehak, tell us, what do you mean by alpha hydrogen? Sir, Yes. कोई एल्काइल ग्रुप के पहले वाला हाइड्रोजन निकल जाए तो? अल्काइल ग्रुप के पहले वाला? I mean, दो कार्बन से उसमें से जो फर्स्ट कार्बन का कोई हाइड्रोजन उसको अल्फा. नहीं महक, यू मिस्टेकन. स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर अल्डिहाइड कीटोन के स्टार्टिंग में मैंने आपको ये समझाया था. इवन आल्डोल कंडेंसेशन कैनिज़ारो रिएक्शन करते वक्त हम लोग ने इस पे बहुत चर्चा की थी. इफ यू रिमेम्बर महक, कुछ याद आया? ओके, नो प्रॉब्लम महक, कोई बात नहीं. लेट अस आस्क समवन एल्स. हाँ, मेरी सबसे फेवरेट स्टूडेंट तर्जिनी इसका जवाब देगी. यस तर्जिनी, मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखा रहा हूँ तर्जिनी, ठीक है? आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, ठीक है? बोलो तर्जिनी, किस में अल्फा हाइड्रोजन है, किस में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है? राइट वाले में है और लेफ्ट वाले में नहीं है. क्यों ऐसा? यस दिया, करेक्ट. क्यों ऐसा? तो एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, पर पता है. पता है. पता है. वेरी गुड, good, correct Pepper, good. So I'll explain it once again. So everyone who has written in the chat box were absolutely correct. जिन्होंने भी आंसर दिया है, सबसे परफेक्ट आंसर मुझे दिया का लगा है. She has explained it really very well. So I'll just try to repeat her words. See, over here, जब भी मेरे पास एक फंक्शनल ग्रुप होता है, उस फंक्शनल ग्रुप के बाजू में अगर मेरे पास एक कार्बन हो, उसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं. और उस अल्फा कार्बन के पास अगर मेरे पास हाइड्रोजन हो तो उसको अल्फा हाइड्रोजन बोला जाता है. अब इधर यहाँ पे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ये फंक्शनल ग्रुप के बाजू में तो कार्बन है ही नहीं. अगर कार्बन ही नहीं है तो वो अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहलाता है. ठीक है? क्लियर ऑल ऑफ यू? सो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ही हमारा हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिडक्शन होगा. ठीक है? So let us see now what will happen over here. Over here, suppose if I have RCH2COOH, in this reduction I have to add any halogen in presence of red phosphorus and water. अगर मैं ये करूंगा तो what will happen over here? ये मेरा अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? हेलोजन से रिप्लेस. So RCHX COOH. So this will be my alpha halo carboxylic acid. मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड से मुझे क्या मिला? अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड. This is the purpose of Hell-Volhard-Zelensky reduction. Clear all of you?
श्योर है? ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड? ठीक है, समझ में आया? ओके, चलो तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, है ना? लेट अस डू वन क्वेश्चन. ओके, who's gonna give me the answer? कौन बताएगा आंसर को? Yes, we will start with Dhairya. Are you there, Dhairya? Yes, sir. बताओ इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसमें Hello? कोई रॉकेट, हाँ बेटा मैं सुन रहा हूँ. There is no rocket science over here. Yes, sir. हाँ, क्या करेंगे? ये क्या रिएक्शन है? Sir, हेल्प. red phosphorus and chlorine. Sir, it will replace here at the OH. एक OH को रिप्लेस कर देगा वो? मतलब ये Yes, वाला sir. OH बेटा, ये वाला OH रिप्लेस हो जाएगा, है ना? Maybe. हे भगवान, मे बी मतलब क्या? हम लोग क्या खेल रहे हैं इधर बेटा? मे बी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन माय बेबी? इधर मैं इधर कब से गला फाड़ रहा हूँ बेटा. Sir, ऊपर ऊपर देख सकता है तो बेटा, ऊपर स्क्रीन में क्वेश्चन के ऊपर ही कुछ किया हुआ है बेटा. वहां पे उसमें X2 R रेड. जैसे ग्रुप है ना. हाँ, तो मतलब तू ऐसा बोल रहा है कि ये R ऐसा एक ग्रुप है ना? तो इधर वो R वाला ग्रुप नहीं है. उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? डज इट मेक एनी डिफरेंस? टेल मी, डू यू थिंक इट डज इट मेक एनी डिफरेंस? ऐसा तेरे को लगता है? नो. इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. सिर्फ क्या हुआ था वो देख, क्या हो रहा है यहाँ पे. ये एक हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन में से क्लोरीन आ रहा है. हाँ, तो अब मुझे यहाँ पे वैसे ही क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा. सर, क्या होगा बताओ. CH वाला जो H है उसकी जगह क्लोरीन आ जाएगा. हाँ, सुपर करेक्ट, वेरी गुड. So CCl3COOH, which is trichloroacetic acid. This is your answer. Clear? This was this year's question. 2020 का बोर्ड पेपर का एक क्वेश्चन था, इसके लिए मैंने ये पूछ लिया. ठीक है? Clear all of you? समझ में आ गया है? Please give me thumbs up if everyone has understood. Sure? Everyone is with me? पक्का ना? अरे यार प्लीज यार, कैमरास ऑन करो तो तुम लोग फ्रंट स्क्रीन पे आओगे, वरना मेरे को स्क्रीन्स बहुत बदलनी पड़ती है इस लेक्चर में यार. इट्स रियली टायरसम. ओके, चलो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन. हाँ, इफ यू रिमेम्बर, आप लोगों को वीडियोस में बताया होगा कि इसका कन्वर्जन कैसे आ सकता है, राइट? Again, that is also not a part of NCERT textbook. It is just given for your knowledge कि आप ये जो हमारा हेलोजन है, suppose if you have C, एक नॉर्मल रिएक्शन ले लेते हैं. चलो, CH3COOH with X2 red phosphorus NH2O, है ना? तो अगर हमारे पास यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या लग जाएगा, वो X लग जाएगा with COOH. तो अब फर्दर अगर मैं इसको रिएक्शन करवाऊं with NH3 with KCN व XYZ, तो फिर ये हेलोजन रिप्लेस होते जाते हैं. रिमेम्बर, ये आप लोग ने वीडियो में देखा होगा. एट द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो मैम ने आपको कराया हुआ है ना? करेक्ट? सो डोंट वरी, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट बुक कन्वर्जन. इट इज जस्ट अ वन स्टेप अहेड मैकेनिज्म व्हिच हैज बीन टोल्ड टू यू ऑल. ठीक है? तो अगर आपको आए ऐसा एग्जाम में तो डरना नहीं है. ठीक है? क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आया? श्योर? यस प्रतीक, प्लस HX होगा प्रोडक्ट में. ओके,
क्लियर है इधर तक? चलो, let us go on to the next one. Let me go on to the electrophilic substitution reactions. The electrophilic substitution reactions. Now what happens in this electrophilic substitution reaction? हमको पता है कि हमारा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो कैसा होता है. The carboxylic group is a deactivating group, है कि नहीं? ये धैर्य के साथ बात करके मैं डीएक्टिवेशन का स्पेलिंग भूल गया. डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. सो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करेगा? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जब भी कहीं पे लगता है ऑन योर बेंजीन रिंग, इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. और जब भी ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो वो कहाँ पे जाता है? At what position does it go? It goes to your which position? Meta position. Which position? Meta position. तो हमारे सारे जो भी रिएक्शन होंगे वो मेटा पोजिशन पे जाएंगे. ठीक है? Where it will go? मेटा पोजिशन पे जाएंगे. ठीक है? चलो, now over here let us begin. See, I'll make a memory map जैसा thing over here, तो आपको थोड़ा सा easy हो जाएगा. This is benzoic acid. सबसे बेसिक एसिड मैंने लिया हुआ है एरोमेटिक में. ठीक है? अब benzoic acid में suppose if you add concentrated HNO3 and H2SO4, so what you're gonna get? क्योंकि वो NO2 ग्रुप कहाँ चला जाएगा? मेटा पोजिशन पे. करेक्ट? ठीक है? देन ओवर हियर सपोज इफ यू ऐड, आप क्या ऐड कर सकते हो यहाँ पे? यस, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3. अगर ये ऐड किया तो हमारा हेलोजन कहाँ पे जाएगा? हेलोजन विल अगेन गो टू मेटा पोजिशन. तो हमको क्या मिलेगा? मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड. अगर सपोज इसी रिएक्शन में हम लोग ने ऐड किया H2SO4 प्लस SO3, इस मिक्सचर को ओलियम बोला जाता है, इफ यू रिमेम्बर, है ना? इस मिक्सचर को क्या बोला जाता है ऑल ऑफ यू? ओलियम. H2SO4 प्लस SO3. तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे? व्हाट डू वी गेट ओवर हियर? वी विल गेट मेटा पोजिशन पे SO3H. ओके, करेक्ट? अब जब ये बेंजोइक एसिड में हम लोग फ्रिडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन करने जाएंगे तो फ्रिडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होंगे. बेंजोइक एसिड डज नॉट गिव यू फ्रिडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन. व्हाट इज द रीजन? बेंजोइक एसिड फ्रिडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता है? एनीवन? कोई बता सकता है? एनीवन कैन गिव मी द आंसर? अगर वीडियो देखा होगा आप लोगों को तो आंसर आता होगा. Anyone? There are only 4 people who have seen the video. Yes, माहिर, बताओ क्या होगा? सर मुझे नहीं पता. तो आपका हैंड रेज था बेटा. अरे सर वो पहले के लिए. ओ ऐसा, ठीक. ओके, who else? Anyone? दिया को चांस देते. यस दिया, बताओ. So I even raised for the before question. ओ ऐसा है. Yes. ओ नो प्रॉब्लम. अक्षी आपको आता है कि आप यू नो इट? नहीं? नहीं? No, sir. Okay, no problem. चल, I'll tell you the answer. I'll give last chance to Riman. Riman आता है तेको? Do you know it?
अरे तो हैंड रेस क्यों है सब लोगों का? मेरे को हैंड रेस क्यों दिखाई देते हैं? अगर लोअर हैंड्स कर दो ना, if possible please. Okay, चलो, see, I'll give you the reason. Please write down the reason, all of you. Benzoic acid do not give Friedel-Crafts reaction. नहीं रोशनी, वो नहीं है, that is not the reason. उसके अलावा भी एक reason है, मतलब there are two reasons for it. So first reason, partially you are correct. The carboxyl group is electron withdrawing group, that is deactivating in nature, and it forms bond with anhydrous AlCl3. वो anhydrous AlCl3 के साथ बॉन्ड बना देता है. तो anhydrous AlCl3 के साथ अगर बॉन्ड बना दिया तो फर्दर रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा. So benzoic acid do not give Friedel-Crafts reaction. ठीक है? Please remember and make a note of this, all of you. Benzoic acid does not give Friedel-Crafts reaction. Why it does not give Friedel-Crafts reaction? क्योंकि जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो डीएक्टिवेटिंग तो है ही, उसकी एक्टिवेटिंग ग्रुप की वजह से what happens is it forms bond with anhydrous AlCl3. जो आपका anhydrous AlCl3 है वो कैसा है? It is Lewis acid, और इसकी वजह से Friedel-Crafts का रिएक्शन आगे बढ़ ही नहीं पाता है. इसके लिए बेंजोइक एसिड Friedel-Crafts रिएक्शन नहीं देता. ठीक है? क्लियर ऑल ऑफ यू? टिल हियर एवरीवन इज क्लियर? श्योर है? पक्का एकदम से श्योर? प्लीज बाय द शो ऑफ हैंड्स टेल मी इफ यू आर विथ मी और नॉट. करेक्ट? ओके, दैट्स ग्रेट. मोस्ट ऑफ यू आर विथ मी. ओके, प्रतीक समझ में आ रहा है बेटा? प्लीज गिव अ हैंड रेज इफ यू कैन. ओके, रिया, ग्रेट. आकाश समझ में आ रहा है बेटा? आदित्य, महक, क्षितिज, श्योर है? So I guess this will come to the end of the chapter. This is a conclusion one. यहाँ पे chapter conclude हो जाता है आपका. Aldehyde ketone carboxylic acid comes to an end. Okay. Let me now go to some of the questions जो आपको काम लगेंगे. Let me just zoom it. Yes. So, can anyone answer this question? It's a very simple question. बहुत ही simple question है. Yes, संजना, you are absolutely correct. Benzoic acid जो होता है वो acylation देता है but alkylation नहीं देता. ठीक है? Okay. Good question. Okay, let us go for this one. I'll repeat the question for you all. Compound A was prepared by oxidation of compound B with alkaline potassium permanganate. Compound A on reduction with LiLH4 gets converted back to compound B. When A is heated with B in presence of sulfuric acid, it produces fruity smelling compound C. Which family does A, B and C belong to? And as expected, धैर्य का सबसे पहला हैंड रेज आ गया है. वेरी गुड, क्योंकि उसने ही सूंघा नहीं है ना, तो अब उसको आता है. गुड. इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. Very basic question, and believe me, this is a 3 marker question in boards. ये आपका टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है 3 मार्क के लिए. Yes, Roshni, absolutely correct. You have answered it correctly in the chat box. Raman, you have also answered it correctly. Mahir is also correct. Yes, Harsh, but yes. नहीं समृति, उल्टा कर दिया. A is something else और वो B हो जाएगा जो आपका आंसर है वो. Okay.
See to it, all of you. Try करो. Who's gonna give me the answer? Come on. कौन बता पाएगा? Yes, let us hear it from. कौन बताएगा? Yes, Nidhi, absolutely correct. Just you can try, beta. Janish, are you there? Perfect, Tarjini. Yes, Samriddhi, now you are correct. Janish, you can try, beta. Are you there? यस सर. बताओ बेटा. कंपाउंड ए क्या होगा? कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? कंपाउंड बी कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? सर एग्जैक्ट नहीं पता. क्या ही फर्क पड़ता है, सब ट्राई कर रहे हैं बेटा. Who cares? Just go for it. नहीं सर आइडिया. अरे जनेश देख, सी तो पता ही होगा ना बेटा. फ्रूटी स्मेल कंपाउंड. हाँ, कौन सा होता है फ्रूटी स्मेल कंपाउंड? एस्टर. करेक्ट. तो क्या नहीं आया इसमें बेटा? सी. ए प्लस बी जब H2SO4 में डलता है ना, तो वो बोलता है सी बनाता है. और सी तुझे पता है क्या है? एस्टर. अब ए और बी क्या हो सकता है बताओ? बेटा अभी किया, इसी लेक्चर में हम लोग ने किया, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में. सर ऊपर. अरे वो बता दूंगा तो सब पता चल जाएगा ना यार जनेश, ऐसा सर थोड़ी. ऊपर का मतलब वो किया नहीं था. ओके, किया नहीं है आपने, पर बेटा ये तो 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, 10th में भी यही आता है. कोई बात नहीं जनेश, बट यू ट्राइड दिस मच, दैट इज वेल डन. आई अप्रिशिएट दिस मच. गुड. ओके, तो हमारे भावुक इंसान जिन्होंने कभी एस्टर को सूंघा नहीं है, वो इसका जवाब देंगे. यस धैर्य, बताओ. ए और बी क्या होगा? A acid, carboxylic acid. यस, ए होगा कार्बोक्सिलिक एसिड. वेरी गुड. और बी क्या होगा? Alcohol. अरे वाह, अल्कोहल. परफेक्ट. वेरी गुड. गुड धैर्य. ग्रेट. ऐसा पार्टिसिपेशन करता रहे तो मेरे को ऐसा लगे कि मैं कुछ सिखा रहा हूँ. बराबर ना? गुड गुड. करेक्ट है. परफेक्ट ऑल ऑफ यू. सुपर. सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कैसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में ऑन द बेसिस ऑफ दिस? श्योर है? ओके, चलो 5 मिनट थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, है ना, जो हम लोग ने एल्डिहाइड कीटोन में किया था थोड़ा, और फिर आई लीव इट. ठीक है? ओके, चलो. ओके, पहला क्वेश्चन. इस कंपाउंड का नाम बताइए. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इस कंपाउंड का नाम बताएंगे. कौन बताएंगे? Who will tell me the name of this compound? Yes, Sanjana, you are correct. और ये बताएंगे हमें केवल. यस केवल, बताओ इसका नाम क्या है? यस रोशनी, करेक्ट. केवल, आर यू देयर बेटा? तो अनम्यूट करो केवल. यस निधि, यू आर करेक्ट. कांट यू अनम्यूट? रिमन, वो हमारा ये है रचित. चुल्लू भर पानी में डूब जाओ. यू आर रॉन्ग. Riman, you have given the IUPAC name. I need the trivial name. IUPAC कहाँ आता है मुझे? इतना हम लोग थोड़ी पढ़े लिखे हैं. पढ़े लिखे तो सिर्फ उद्गम और DPS के टीचर हैं भाई.
हम लोग नहीं। यस समृद्धि, यू आर करेक्ट। बोलो नाम समृद्धि, क्या है इसका नाम? Acetophenone. Perfect. The compound is acetophenone. Correct. चलो, ओके केवल, ठीक है। गिव मी द रीजन लेटर ऑन। जैनिश, अभी सेंट कबीर की बारी है, तेरी इज्जत का सवाल है। Yes, जैनिश, sir. मुझे बताओ एसिटोफेनॉन टोलेंस टेस्ट देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा क्यों नहीं देगा? सर, कीटोन्स नहीं देते हैं टोलेंस टेस्ट। वेरी गुड। टोलेंस टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स अल्डिहाइड देते देते हैं। हैं, कीटोन्स नहीं देते हैं, तो एसिटोफेनॉन टोलेंस टेस्ट नहीं देगा। वेरी गुड, संभाल ली सेंट कबीर की नाक तूने। गुड। चलो, अब कौन आएगा अपने स्कूल को बचाने के लिए? प्रणय आएगा भाई। प्रणय, आर यू देयर? यस सर। प्रणय, एसिटोफेनॉन जो है वो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा? एसिटोफेनॉन और हेलोफॉर्म टेस्ट Quite simple, Pranay. I think it will give. Yes, it will give. Correct. Haloform tests are given by methyl ketones, बेटा, है ना? तो COCH3 ग्रुप इसमें है, The methyl ketone. तो yes, हेलोफॉर्म टेस्ट वो देगा। Perfect. Good. Correct. Let us move on to Isha. Hi Isha, how are you? Isha, are you there? Yes, sir. ईशा बेटा, मेरे को हेलोफॉर्म रिएक्शन का इक्वेशन बता सकोगे आप? इसका रिएक्शन क्या होगा? सर नहीं याद। नहीं याद? ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके बेटा, ठीक है। म्यूट योरसेल्फ। हु इज गोना टेल मी? यस, फ्रेया बताएंगी। फ्रेया, आर यू देयर? Yes. बताओ फ्रेया, हेलोफॉर्म में क्या करते हैं हम लोग? We add NaOI. वेरी गुड, NaOI। NaOI को क्या बोलते हैं फ्रेया? और sodium hypoiodide. परफेक्ट, सोडियम हाइपोआयोडाइड। ये मिलता कैसे है फ्रेया? सोडियम हाइपोआयोडाइड बनता कैसे है? याद नहीं। NaOH प्लस I2 बेटा, जब NaOH प्लस I2 करेंगे तो सोडियम हाइपोआयोडाइड मिलेगा। ठीक है, चलो रिएक्शन बताओ, इसमें मिलता क्या है हम लोगों को? CHI3 plus benzene. CHI3 प्लस बेंजीन। बेंजीन पे क्या? C. ओके, इट कन्वर्ट्स इनटू कार्बोक्सिलेट आयन। परफेक्ट। और CHI3 को क्या बोलते हैं फ्रेया? व्हाट इज द नेम गिवन टू CHI3? Methyl iodide. Yes, iodoform, which is yellow precipitates. That is the reaction. Clear all of you? Very good, Freya. Perfect. Good. All of you understood? सबको समझ में आ गया है? पक्का एकदम से? Sure. थोड़ा थोड़ा याद आया कुछ अभी? समृद्धि चिंता मत करना, ये इस मतलब स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर था तो आपने मिस किया हुआ है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ऑल ऑफ यू जिन्होंने चैप्टर किया हुआ है उनको कुछ रिवाइज हो गया, राइट? क्लियर है? चलो, लेट अस मीट ऑन फ्राइडे। प्लीज रिवाइज द चैप्टर एंड कम, वी विल टेक NCERT क्वेश्चंस ऑफ इट। ठीक है? क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो, बाय बाय, टेक केयर।